ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ यूएस ਤੇ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ तमाम ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। $155 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਂਟਨਾਈਲ ਡਰੱਗ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਂਟਨਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਲਾਨ ਏ, ਪਲਾਨ ਬੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ 5,63,000 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਨੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25% ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਵੀ 10% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪੀਐਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ यूएस ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫੈਂਟਨਾਈਲ ਜੋ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ नहीं हटेंगे। साफ तौर पे ऐलान जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के वालों किया गया। मेरा मेरे से होगी नीरज फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। नीरज, इस टैरिफ वॉर के बीच में जो तमाम एक तीखा प्रतिक्रम हम कह सकते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिया गया है, इस बात का साफ तौर पे उन्होंने कह दिया गया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, 3 देशों पे उन्होंने टैरिफ का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर, कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाया गया है और इसी के जवाब में दोनों देशों की तरफ से न सिर्फ कनाडा बल्कि मैक्सिको की तरफ से भी टैरिफ का ऐलान किया गया, यानी जवाब दिया गया है। और जस्टिन ट्रूडो का तो यहाँ तक कहना है कि आने वाले वक्त में अगर ट्रंप प्रशासन की तरफ से और टैरिफ इम्पोज किया जाता है तो इसी तरह की जवाबी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार से जो ऐलान किए गए हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अमेरिकी सामानों पे टैरिफ का, वो लागू हो जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि इस तरह से जो वॉर, ट्रेड वॉर बढ़ा है दोनों देशों के बीच में, इसका असर क्या होता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के तीनों देशों के बीच में यूएस, कनाडा और मैक्सिको में वर्षों से किसी तरह का टैरिफ नहीं था, वर्चुअली कोई टैरिफ नहीं था। लेकिन इस तरह के टैरिफ इम्पोज के बाद अब तीनों देशों के बीच ट्रेड वॉर बढ़ने के तो आसार है ही, लेकिन इसका असर आम उपभोक्ताओं पे होगा, चाहे अमेरिका के हों, मैक्सिको के हों या फिर कनाडा के हों। नीरज, इससे कहा जा सकता है कि दोनों देशों के जो लोकल सिटीजन्स हैं उस पे कहीं ना कहीं उन पे बोझ पड़ सकता है बड़ा। देखिए, बिल्कुल कनाडा के लोगों को भी अमेरिकी सामान का इस्तेमाल जो करते हैं उसको अधिक महंगा लेना होगा और अमेरिका के लोगों पर भी इसका असर होगा। लेकिन अमेरिका से कनाडा को अमेरिका में अपने सामान बेचने में ज्यादा फायदा होता रहा है, मैक्सिको को भी ज्यादा फायदा
होता रहा है तो मैक्सिको और कनाडा का इसका नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन इस फैसले का असर जो तीनों देशों ने अब किया है उसका असर तीनों देशों के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें महंगी वस्तुएं अब लेनी होंगी। नीरज, एक फैंटनाइल ड्रग का जिक्र हो रहा है, क्या इस कारण ही जो कनाडा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने तमाम देशों पे ये टैरिफ लगाने का फैसला किया? नीरज, चलो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, साडे सहयोगी साडे नाल जुड़े। हालांकि आज जो टैरिफ वॉर है वो शुरू हो चुकी है। अमेरिका ते कनाडा दे विचाले आ पूरी टैरिफ वॉर शुरू हुई है ते ट्रंप दे टैरिफ लगाउण ते कनाडा दा भी टैरिफ पलटवार सामने आया। हालांकि हुण जो कनाडा दे पीएम जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों आ साफ कर दिता गया है कि हुण जो कनेडियंस ने वो पिछे नहीं हटणगे, क्योंकि 155 अरब डॉलर अमेरिकी इंपोर्ट ते 25% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने कनाडा ते मैक्सिको ते 25% टैरिफ लगा दिता है। ट्रंप ने चाइना तो इंपोर्ट ते भी 10% टैरिफ लगाया। हुण पलटवार करते हुए तमाम कंट्रीज नजर आ रहे हैं। टैरिफ 4 फरवरी यानी कि मंगलवार तो लागू होंगे। ट्रंप का कहना है कि इन्हां देशों तो साडे देश गैर कानूनी फैंटनाइल ड्रग जो है वो पहुंच रही है ते फैंटनाइल दे नाल लखां अमेरिकीज मारे गए ने। सानू अमेरिकी नागरिकां दी रक्षा करन दी लोड़ है। इस करके आज जो फैसला है ट्रंप गवर्नमेंट दे वल्लों लिया गया ते ट्रंप दा टैरिफ वॉर जिस सब दे चलदे फैसला क्यों ते किस लिए लिया गया है, इसका असर की कुछ रहेगा। फैंटनाइल जो ड्रग है तस्करी रोकन दे लई फैंटनाइल हेरोइन तो 50 गुना ज्यादा खतरनाक है, इस गल का जिक्र किया गया। फैंटनाइल तो अमेरिका च लखां लोकां दी मौत जो है वो हुण तक हो चुकी है। ट्रंप दे वल्लों इस जो है बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, फैसला क्यों ते इसका असर की होएगा, इस गल का जिक्र कर रहे हैं। घरेलू निर्माण को उत्साहित करना यानी कि जो प्रोडक्शन लोकल धरती ते ही होंदी है उसनों कितना किते वधावा देना, उत्साहित देना आ ट्रंप गवर्नमेंट का एक टीचा है। गैर कानूनी प्रवास खत्म करना आ भी जो एक अहम टारगेट है जिसका जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए ने कि उन्होंने बिक जो अहम टीचा है इलीगल जो इमिग्रेंट्स ने उन्होंने बाहर करना, उन्होंने डिपोर्ट करना, घरेलू निर्माण उत्साहित करना, इस गल का भी जिक्र बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो ने वो कर चुके हैं। एक टैरिफ वॉर असी कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। फैसला क्यों लिया गया तो इसका असर की पएगा। अमेरिका च कुछ चीज़ों के रेट बहुत वध जाएंगे। तेल, बिजली, ऑटोमोबाइल, लकड़ी और खेती सैक्टर भी इस दे नाल प्रभावित होंगे, इफेक्टेड होंगे। फैंटनाइल हेरोइन तो 50 गुना ज़्यादा खतरनाक है ते फैंटनाइल तो अमेरिका च लखां लोकां दी मौत हुण तक हो चुकी है। आज जो अहम रीजन है ट्रंप दे वल्लों इस गल का जिक्र किया गया कि जो टैरिफ लगाउण दा मुख जो रीजन है, कारण है, उन्होंने वल्लों आ दस्सिया गया कि फैंटनाइल जो ड्रग है ਵੱਡੇ पद्धर ते इन्हां देशों के थ्रू साडे कंट्री एंटर हो रही है, जिसनों लैके आ वड्डा फैसला लिया गया क्योंकि कई अमेरिकनस इसकी भेट चाल कर चुके हैं, कई अमेरिकनस की मौत हो चुकी। हालांकि लखां का जिक्र उन्होंने वल्लों किया गया। घरेलू निर्माण उत्साहित करना, घरेलू उद्योगों को इंपोर्ट मुकाबले तो बचाना। अमेरिका कुछ चीज़ों के रेट बहुत बढ़ जाएंगे, इसका वड्डा असर जो है उत्थे जो लोकल सिटीजनस ने ज़ाहिर जी गल है कि उन्होंने इसका एक वड्डा प्रभाव पएगा। तेल, बिजली, ऑटोमोबाइल, लकड़ी और खेती सैक्टर भी आज जो तमाम टैरिफ्स ने आप प्रभावित करेंगे। कनाडा ते 25% टैरिफ लगाया गया है, मैक्सिको ते 25% लगाया गया, दूसरे पास चाइना ते 10% टैरिफ जो है वो लगाया गया। हुण तमाम जो कंट्रीज ने कितना कितने उन्होंने तिखा प्रतिक्रम भी सामने आ रहा है। कनाडा के पीएम दे वल्लों साफ तौर पर इस गल का जिक्र किया जा चुका है कि हुण जो कैनेडियंस ने वो पिछे नहीं हटणगे। During your darkest hours, we were always there, standing with you, unfortunately. The actions taken today by the White House split us apart instead of bringing us together. I am announcing Canada will be responding to the US trade action with 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. This will include immediate tariffs on $30 billion worth of goods as of Tuesday, followed by further tariffs on $125 billion worth of American products in 21 days' time to allow Canadian companies and supply chains to seek to find alternatives.